Exercise 6.2, increasing or decreasing function. Decreasing function. Strictly decreasing functions. A function fx is said to be strictly decreasing functions on AB if x1 is less than x2. This implies f of x1 is greater than f of x2 for all values of x1 x2 belong to open interval AB. ग्राफिकली देखिए, हम ये पॉइंट A ले लेते हैं और ये B. x1 और x2 दोनों पॉइंट्स लेते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है ये ग्राफिकली आप समझिए, ये f ऑफ x1 है, ये f ऑफ x2 है. तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2. इसी तरह इस ग्राफ में भी देखिए, x इज इक्वल टू ए लिया हमने, ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर f डैश x इज लेस देन 0 होगा. दिस वैल्यूज x इज इक्वल टू b. तो अब डिक्रीजिंग फंक्शन, a function fx is said to be decreasing functions on AB if x1 is less than x2. This implies f of x1 is greater than f of x2 for all values of x1 x2 belong to AB. ग्राफिकली आप देखिए, ये पॉइंट A है, ये B पॉइंट है, x1 और x2, ये f of x1 है, ये f of x2 है. तो ये डिक्रीजिंग फंक्शंस का ग्राफिकली है, और ये भी A है, यहाँ पर f डैश x इज इक्वल टू 0, दिस f डैश x इज लेस देन 0. तो increasing functions, strictly increasing functions. A function fx is said to be strictly increasing functions on AB if x1 is less than x2. This implies f of x1 is less than f of x2 for all values of x1 and x2 belong to open interval AB. And इसकी ग्राफिकली देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस का ये A ले लिया हमने, ये B पॉइंट है, x1 और x2 पॉइंट है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2. तो f of x1 is less than f of x2. अब इंक्रीजिंग फंक्शंस पर बात करिए. ए फंक्शन fx is said to be increasing, x1 is less than x2. This implies f of x1 is less than equal to f of x2. ये पॉइंट लिया ग्राफिकली, x1 x2 AB. यहाँ पर आप देखिए f of x1 is less than equal to f of x2. इक्वल टू का निशान आ गया इसमें ओनली लेस देन का निशान है, तो ये ध्यान रखना है आपने. इसी तरह इंक्रीजिंग फंक्शंस का ये देखिए, यहाँ पर f डैश x इज 0 है, दैट इज f डैश x इज ग्रेटर देन 0. इसी तरह ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का f डैश x इज ग्रेटर देन 0. A और B पॉइंट लिए, तो ग्राफिकली भी आप आगे देखिए. Condition for the function to be increasing and decreasing. Let f be the differentiable real functions defined on an open interval AB. First part, A part, if f dash x is greater than 0 for all x belong to open interval AB, then fx is increasing on AB. If f dash x is less than 0 for all x belong to AB, then fx is decreasing on AB. Exercise 6.2. Question number 1. fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on R. fx is equal to 3x plus 17. This implies
f dash x is equal to 3, since f dash x is greater than 0 for all x belong to real number. So therefore fx is strictly increasing. Question number second. So that fx is equal to e की power 2x is strictly increasing on R fx is equal to e की पावर 2x, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू में e की पावर 2x. नाउ e की पावर 2x is always greater than 0 for x belong to R. So therefore f dash x is greater than 0 for all x belong to R. So therefore fx is strictly increasing. Question number 3. So that fx is equal to sin x a part strictly increasing 0 to pi by 2 and b part strictly decreasing on pi by 2 to pi. और सी पार्ट है neither increasing or nor decreasing. In 0 to pi. ये पार्ट लेते हैं पहले. fx is equal to sin x, differentiate with respect to x, f dash x is equal to cos x. A part cos x is greater than 0 for all x belong to 0 to pi by 2. भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो cos x is तो therefore f dash x is greater than 0.
जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। बी पार्ट है एफ डैश एक्स हमारा क्या आया भाई, कोस एक्स। कोस एक्स, अब कोस एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू π/2 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो ये लेस देन जीरो हो गया, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, तो हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to पाई। पार्ट सी, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एक्स कहाँ पर बिलोंग करता है, अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। कोस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ऑन 0 to π/2 and cos x is less than 0 π/2 से पाई। तो हम लिख सकते हैं therefore f dash x may be greater than 0 or less than 0। तो मे बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, तो हेंस एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल्स। अब की बार क्या लिखता है ये, फाइंड द इंटरवल in which f(x) is equal to 2x square minus 3x is steadily increasing, b is steadily decreasing। f(x) is equal to 2x square minus 3x, differentiate with respect to x, f dash x is equal to 4x minus 3। now f dash x is equal to 0, so this implies 4x minus is equal to 0, so therefore x is equal to 3/4। intervals x is less than 3/4 and x is greater than 3/4। ये देखिए 0
ये 1 है, ये 3/4 है, इससे लेस भी होगी और इससे ग्रेटर भी होगा। तो हमारे पास दो इंटरवल बन गए, एक x इज लेस देन 3/4 मतलब माइनस इनफाइनाइट से 3/4 और 3/4 से इनफाइनाइट। आप इंटरवल बनाने देखिए आप, उसके बाद आपने दोनों इंटरवल पर चेक करना है। एट x इज लेस देन 3/4 तो f डैश x, अब 3/4 f डैश x क्या है, 4x माइनस 3। 3/4 से आप छोटी वैल्यू लेते हैं तो 1/2 ले लेते हैं, 1/, तो ये नेगेटिव आएगा, दैट इज नेगेटिव। जब इसमें चेक करिए, और जब f डैश x नेगेटिव तो दिस इंप्लाइज f डैश x इज लेस देन 0, तो लिखेंगे देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 एट x इज ग्रेटर देन 3/4। दूसरा इंटरवल ये है, तो आपने f डैश x चेक करना है। 3/4 से स्ट्रिक्टली वैल्यू थोड़ी बड़ी लेते हैं, दैट इज पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आ तो दिस इंप्लाइज f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर fx इज strictly increasing on 3/4 to infinite. Find the intervals in which fx is equal to 2x3 minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing and decreasing. आप देखिए fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 36x प्लस 7। आप डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ये देखिए इसमें से 6 कॉमन ले ले तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, तो f डैश x इज इक्वल टू 6 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2। नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज 6 इंटू में x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2। अब आप इंटरवल्स बनाएंगे, देखिए नंबर लाइन पर देखिए आप, ये 0 है, ये 3 है और ये -2 है। एक बार तो आप देखिए -2 से लेस हो गया तो इधर आएगा, ग्रेटर होगा तो इधर आएगा, और ये 3 है
इससे छोटा होगा 3 से तो इधर आ जाएगा, और बड़ा होगा तो इधर आ जाएगा। तो हमारे पास 3 इंटरवल बन गए। पहला इंटरवल x इज लेस देन -2 और -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3 और x इज ग्रेटर देन 3। जो भी आपकी क्रिटिकल वैल्यूज आए x f' को 0 के इक्वल रखने पर 2 आए, 3 आए, 4 आए, जो सबसे छोटी है उसको लेस देन लेना, जो सबसे बड़ी है वो ग्रेटर देन, और बीच के इंटरवल्स अपने आप बनते चले जाएंगे। कोई मुश्किल कार्य नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं -∞ से -2, इसको लिख सकते हैं -2 से 3, और इसको लिख सकते हैं 3 to ∞। इंटरवल्स पर काफ़ी ध्यान देना है। एट, अब एक एक इंटरवल ले लेंगे। एट x इज लेस देन -2, तो f', आप देखिए f' ये है हमारे पास, ये f' है, इसमें 6 तो पॉजिटिव नंबर है। अब x की वैल्यू -2 से छोटी यहाँ रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर भी -2 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव दिस पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज f' इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर fx इज strictly increasing at x is less than -2। दूसरा इंटरवल है -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, और इसमें भी f' को आप पॉजिटिव और नेगेटिव, ग्रेटर देन है लेस देन है चेक करेंगे। -2 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख के देखें। इसमें 6 तो पहले ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पर 3 से छोटी कोई भी वैल्यूज आप रखेंगे दैट इज नेगेटिव, और यहाँ पर -2 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, तो दिस इम्प्लाइज f' is less than 0। Therefore fx is strictly decreasing -2 से 3 on इसी प्रकार तीसरा इंटरवल भी आप लेंगे x इज ग्रेटर देन 3, और वहां भी आप f' को चेक करेंगे। f' को आप चेक करेंगे तो इसमें देखिए 6 तो पहले ही जमा का है, ग्रेटर देन 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज f' इज ग्रेटर देन 0। जब f' ग्रेटर देन 0 है तो आप लिखेंगे fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x इज ग्रेटर देन 3। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बिल्कुल सारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन आपने इसी तरह सोल्व करने हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस fx इज इक्वल टू x प्लस 1 की पावर 3 इंटू में x माइनस 3 की पावर 3। ये ई पार्ट है, इसमें ई तक पार्ट है, आपने सोल्व करने हैं बाकी सभी। इसने कहा फाइंड द इंटरवल्स ऑफ दिस फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
तो पहला काम आपने क्या करना है भाई, डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। u इंटू वी से प्रोडक्ट रूल से आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू में एक्स प्लस 1 की पावर 2 और x माइनस 3 की पावर 2 इज कॉमन। तो ये आपके पास आएगा x प्लस 1 प्लस में x माइनस 3। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू में 2x माइनस 4। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू में x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 2 आपने डिफरेंशिएट कर लेना है। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। फिर आप एफ डैश एक्स ने 0 के इक्वल लेंगे तो दिस इंप्लाइज 6 इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 2। आइदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 1, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2। आपके पास तीन वैल्यूज आई हैं। आप देखिए इंटरवल्स बनाइए आप इनके। ये -1 है तो ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है। पहले सबसे पहले इसमें देखिए ये इधर आएगा इंटरवल्स और ये फिर 2 से लेस होगा इधर आएगा, ग्रेटर होगा तो इधर आएगा, इससे लेस होगा तो इधर आएगा, ग्रेटर होगा तो इधर आएगा। तो आप इंटरवल्स बना सकते हैं। पहला इंटरवल क्या बना, इफ x is less than -1, -1 is less than x is less than 2, 2 is less than x is less than 3 और x is greater than 3। हमारे पास 4 इंटरवल्स बन गए इस क्वेश्चन में। हम इसको इस इंटरवल्स को रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -∞ से -1, -1 से 2 और 2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट। बिल्कुल सिमिलरली आपने उसी तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहला इंटरवल लिया हमने, ये भैया यहाँ पर आपकी गलती हो गई है, ये -1 आएगा, -2 की जगह 1 कीजिए, ये इंटरवल्स बनेंगे आपके। यहाँ देखिए ये +1 है, -3 है तो -2 हो गया, x -1 और इन सभी से आपकी ये 3 वैल्यूज आई हैं। आप इंटरवल्स फाइंड आउट करिए। अब पहला इंटरवल x इज लेस देन -1 और f डैश x को चेक करिए। देखिए 6 भी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें -1 से छोटी वैल्यू रखेंगे, दैट इज नेगेटिव, दिस नेगेटिव, तो दिस इंप्लाइज f डैश x इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 है तो आप क्या लिखेंगे, f x इज स्ट्रेटली डिक्रीजिंग
ऑन x इज लेस देन -1। दूसरा इंटरवल है -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, और इस पर भी आप अपना चेक करिए। पहले 3 फंक्शन तो आपके पॉजिटिव हैं, फैक्टर जो हैं 6x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, ये सभी फैक्टर्स आपके पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ पर आप देखिए -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप लीजिए, यहाँ पर 1 से छोटी और -1 से बड़ी तो नेगेटिव आएगी, दैट इज नेगेटिव। जब इस पर भी ये नेगेटिव आएगी तो सारा नेगेटिव हो गया, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज f' इज लेस देन 0। तो यहाँ भी आपने लिखा fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। अगला इंटरवल है 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। तो f' पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज f' इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर fx is strictly increasing on 1 to 3। और फोर्थ इंटरवल है x is greater than 3। यहाँ भी आप देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव आएगा। तो दिस इम्प्लाइज f' is greater than 0। तो therefore fx is strictly increasing on 3 to infinite। तो बिल्कुल आपने किसी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखता है so that y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon में 2 plus x is greater than -1 is an increasing function of x through tau its domain। देखिए आप इसमें let y is equal to fx, तो therefore fx is equal to log of x 1 plus x माइनस में 2x अपॉन में 2 plus x। आप देखिए पहला काम आपका वही है, आपको ये दे रखा बिकॉज x इज ग्रेटर देन -1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f' इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 plus x। log x का क्या डेरिवेटिव होता है 1/x, इंटू में 1 plus x का दोबारा करेंगे तो 1 आएगा, माइनस u/v से करेंगे इसको 2 plus x इंटू 2 माइनस 2x इंटू में 1 अपॉन में 2 plus x का होल स्क्वायर।
तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसमें भी आप एलसीएम लीजिए, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास, अब आप देखेंगे x इज ग्रेटर देन -1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखिए भाई यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव बिकॉज x इज ग्रेटर देन -1। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या कहेंगे, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग fx is increasing function। for x is greater than -1। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा minus theta is an increasing function on theta of theta in intervals close interval 0 to π/2। देखिए आप इसमें भी हम नोट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ थीटा। तो देयरफॉर एफ थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y भी रहने दे सकते हैं, dy/d थीटा लिख देना, नहीं तो सारे एफ एक्स से किए हैं तो इसीलिए मैंने ये चेंज करवाया है। एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, यहाँ u/v यूज करिए, 2 प्लस cos थीटा इंटू में 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इंटू में 0 माइनस sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1। देयरफॉर एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, आप इसमें सोल्व करेंगे तो 8 cos थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा
अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा एलसीएम ले लें साथ साथ में, माइनस में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। देयरफॉर एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये आपका आंसर आएगा, आंसर नहीं मतलब सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन आएगी। 8 cos थीटा माइनस 4 तो 4 cos थीटा प्लस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 4 से 4 कैंसल अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू ये बचेगा आपके पास 4 cos थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ऑन इंटरवल एट, इंटरवल है 0 से π/2, इस इंटरवल पर आपने देखना है, तो एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए ये आ जाएगा cos थीटा इंटू में 4 माइनस cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और इसमें होल स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इज ऑलवेज पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव आएंगे तो आप लिखेंगे एफ डैश थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर एफ थीटा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, is an increasing functions on 0 to π/2। कहीं कोई बदलाव नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉगरिथम फंक्शन है और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लीस्ट वैल्यूज, इसने लिखा है of a such that fx is equal to x square minus ax plus 1। is strictly increasing on 1 से 2। ठीक है, बिल्कुल आप उसी तरह करिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस में a, the interval since at 1 is less than x is less than 2, तो दिस implies यदि हम इसमें 2 से गुणा कर लें 2 is less than 2x is less than 4 और 2 प्लस 2 माइनस a जमा है भाई 2 plus a less than 2x plus a is less than 4 plus a, so it means this implies 2 plus a is less than f dash x is less than 4 plus a, so this implies f dash x is greater than 0, so hence fx is strictly increasing on 1 से 2. जब ये ग्रेटर तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या लिखेंगे भाई 2 plus a is greater than equal to 0, तो a is greater than equal to -2, तो least values of a is equal to -2. Answer. Prove that fx is equal to log of cos x is strictly decreasing on 0 to pi by 2 and strictly increasing on pi by 2 से pi. Solution fx is equal to log of cos x f dash x is equal to 1 upon cos x into minus sin x, so this is equal to minus of tangent x. When interval is 0 से pi by 2, so this implies f dash x is less than 0, क्योंकि टेंजेंट क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. जब टेंजेंट पॉजिटिव है तो माइनस का तो दैट इज लेस देन 0 हो गया, तो देयरफॉर व्हेन pi by 2 से pi, so this implies f dash x is greater than 0, so because tangent x is negative in second quadrant, so therefore fx is strictly increasing
ऑन π/2 से पाई, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। तो ये क्वेश्चंस आप सभी ने सोल्व करने हैं एक्सरसाइज। थैंक्स।